Hi guys, myself Amit and you are welcome to my channel. Okay, so in this channel I'll be uploading videos related to artificial intelligence, data science, machine learning, generative AI. So basically related to AI. Okay, so today, I'll be starting with Python programming language first. So first I'll be completing the Python basic part and then object oriented programming, and then we'll be moving slowly towards to machine learning, deep learning and generative AI and agentic AI. Okay, so today I'll be showing ki how to download and install the Python in your local system, and how to download the VS Code. So for that you have to open any browser from your laptop or desktop, and then type python.org. So this is the Python official website. From this website go to this download section and then download the by clicking this button, download the Python latest version. Okay, and and also you can choose as per your operating system. So if you have Windows, then you can go to Windows and then download the whatever version you want, and if you have the Mac user, then you can go to this Mac OS and then you can download whatever version you want to install. Okay, and then I have already installed this. So by clicking this, okay, I am showing you, by clicking this button, one exe file will be downloaded, and then go to your download folder. From the download folder, and then just open this file, and then by clicking next, but simple installation, just click this not customize installation, click upgrade now, and then by clicking, so one pop-up will be coming, so you have to allow that, and then simply do the next. Okay, so I have already installed it, so I'm not going to install it again. And then I'll be, so next thing I'll be showing key how to install VS Code. Okay, to install VS Codes, again open your browser and then type VS Code. Go to this download section. So from this page you can download the VS Code exe file. Okay, so once it will be downloaded, you can install it in your local system. Okay, so VS Code, why I'm choosing VS Code? So VS Code, basically nowadays most of the companies are using this VS Code IDE, so that's why I'm taking this IDE. And after installing it, go to your search bar, then type VS Code. Okay, so from your search bar, if you type VS, then this application will be showing, and Python is installed or not. How can we confirm that if my Python is on my in my local system, my Python is installed or not? Okay, so for that you have to open the command prompt. Okay, open your command prompt and then just type Python -v. Okay, so now in my system it is showing ki Python 3.12 version is already installed. Okay, so by doing this you can confirm the Python is installed or not. Okay, so from tomorrow we'll be start coding. So first we'll be covering the Python basic part, and then object oriented programming, and then we'll be moving towards to machine learning, deep learning and agentic AI, all the advanced thing. Okay, so thank you guys. Okay, so Python install हो गया एंड VS कोड भी इंस्टॉल हो गया, तो अभी हम दिखाएंगे कि हाउ टू क्रिएट एंड एक्टिवेट एनी वर्चुअल एनवायरनमेंट. ओके, सो फॉर दैट आई हैव टू गो टू एनी फोल्डर. सो कोई भी एक फोल्डर पे जाना है, ठीक है. तो फोल्डर पे जाने के बाद ये यहाँ पे जाके मेरे को लिखना है CMD लिखने से ही मेरा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा. तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाने के बाद अभी मेरे को विजुअल स्टूडियो यहाँ पे ओपन करना है, ठीक है. तो वो ओपन करने के लिए क्या करेंगे, कोड स्पेस डॉट देन हिट वन एंटर. मेरा ये फोल्डर लोकेशन पे मेरा विजुअल स्टूडियो ओपन हो गया, ठीक है. तो अभी ओपन हो जाने के बाद मेरे को यहाँ पे मैं कोई भी फाइल कोई भी नाम से मैं फाइल एंड फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है. तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ day1.ipynb, ठीक है. तो मैं जैसे ही ये day1 ipynb बोल के एक फाइल क्रिएट किया, तो ऐसा वाला एक ये फाइल क्रिएट हो गई, ठीक है. तो अभी मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कोड मार्कडाउन. सो मैं कोड पे क्लिक करने से यहाँ पे ये कोड का विंडो, ऐसे कोड का सेल क्रिएट होते जाएगा. तो फर्स्ट मैंने एक day1.ipynb बोल के एक फाइल क्रिएट किया.
ठीक है। तो ये यहाँ पे फाइल क्रिएट करने के बाद मैं ये कोड, ये प्लस आइकन पे क्लिक करने से नीचे ये सेल क्रिएट होते जाएगा। ठीक है। तो इसके अंदर मैं कुछ भी लिख के, अगर मैं लिख रहा हूँ हाई, ठीक है, हाई लिख के मैं यहाँ पे अगर ये रन करने जाऊँ तो मेरे को VS कोड बोल रहा है, VS स्टूडियो बोल रहा है कि पाइथन का एनवायरनमेंट सेलेक्ट करो। ठीक है। अभी तो मैं कोई भी पाइथन का एनवायरनमेंट मेरा पर्टिकुलर वो फोल्डर पे बनाया नहीं। ठीक है। तो ये कैसे रन होगा, तो अभी मेरे को पहले पाइथन का एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा। ठीक है। तो कैसे होगा पाइथन का एनवायरनमेंट क्रिएशन, पाइथन का एनवायरनमेंट क्रिएशन के लिए मेरे को जाना है टर्मिनल, टर्मिनल देन न्यू टर्मिनल। ओके। न्यू टर्मिनल, टर्मिनल में आने के बाद मेरे को, मैं यहाँ से जनरली प्रेफर करता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है। मैं कमांड प्रॉम्प्ट को सिलेक्ट किया, मैं यहाँ से ये ड्रॉप डाउन से जाके यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट सिलेक्ट किया। ठीक है। तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मेरे को लिखना है पाइथन -m VENV देन मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट का नेम। ओके। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट का नेम मैं कुछ भी दे सकता हूँ, तो मैं दे रहा हूँ day 1। ठीक है। तो जैसे ही मैं day 1 लिख के एंटर दिया तो मेरा यहाँ पे एक day 1 बोल के एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया। ठीक है। तो ये वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट तो हो गया, अभी मेरे को इसको एक्टिवेट करना है। ठीक है। तो एक्टिवेट करने के लिए मैं कैसे एक्टिवेट करूँ इसको, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा ये एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने में। हाँ, अभी ये क्रिएट हो गया, अभी मैं इसको एक्टिवेट कर सकता हूँ। तो एक्टिवेट करने के लिए मेरे को क्या करना होगा, एक्टिवेट करने के लिए मेरे को लिखना होगा day 1 /script /activate देन हिट एंटर। तो अभी यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है कि day 1, ये day 1 फास्ट ब्रैकेट के अंदर आ जा रहा है, तो इसका मतलब है ये एनवायरनमेंट मेरा एक्टिवेट हो गया। ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे CLS करके स्क्रीन को क्लीन कर दे रहा हूँ। अभी मैं ये सेल को अगर रन करने जाऊँ तो यहाँ पे बोल रहा है कि मैं पाइथन एनवायरनमेंट पे गया, तो अभी मेरे को मेरा रिकमेंडेड एनवायरनमेंट दिखाई दे रहा है। अभी मैं रिसेंटली जो एनवायरनमेंट बनाया तो वो एनवायरनमेंट मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं ये एनवायरनमेंट को सिलेक्ट किया, तो ये सेल जाके अभी अगर इसको रन करवाऊंगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी फर्स्ट टाइम के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा, तो ये ठीक है। तो जैसे ही मैं फिर से ये सेल को रन किया तो ऐसा वाला एक विंडो आया। तो ये विंडो पे करना क्या है मेरे को, कि रनिंग सेल विद day 1 पाइथन एनवायरनमेंट दिस IPY कर्नेल पैकेज इज नीडेड। ओके। सो मेरा फाइल का जो नेम है, ये नेम है day1.ipynb। सो IPynb बेसिकली एक नोटबुक फाइल होता है, तो उसके लिए मेरे को ये IPY कर्नेल पैकेज को इंस्टॉल करना होगा। ठीक है। मैं इसको इंस्टॉल करवा दिया, जैसे इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया तो ये मेरा अभी इंस्टॉल हो जाएगा एंड मेरा सेल रन हो जाएगा। तो ये इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा, तो ये सेल एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है। तो मेरा एनवायरनमेंट सेटअप भी हो गया, पाइथन इंस्टॉल हो गया, VS कोड सेटअप हो गया, तो अब मेरा हाई मैसेज यहाँ पे प्रिंट भी हो गया। तो इसका मतलब मेरा सब कुछ सही है। तो कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे पाइथन का बेसिक से। ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस, बाय।